मॉर्निंग गाइस, रैली किटेड एक्सपल्स मैंने चंडीगढ़ में ट्राई की थी एंड हियर व्हाट वी हैव इज द फर्स्ट रैली किटेड एक्सपल्स ऑफ वेस्ट बंगाल. इफ यू लुक एट इट, हियर आर योर front forks with the compression and rebound adjustments. This has been set by Uday for his weight, so he's kind of taped it off. ये exhaust लगा हुआ है पीछे का, आप देखोगे suspension is the taller suspension. What else do we have from the rally kit? Seat है ये rally kit वाली, and then there is the gear lever, the side stand, and of course this is not from the rally kit. This is another handlebar that he uses. He's not used the handlebar riser. Of course, this Acerbiz knuckle guards are not again from the rally kit, and neither is this quick throttle. So these are the incremental things he has. Plus, we have something very nice here. This is an ABS kill switch. If I turn this off, the ABS light is not blinking. The ABS stops working. If I turn it on, the ABS is now functional. None of us are used to ABS. बहुत ही प्रिमिटिव बाइक चलाते हैं हम ना, तो बहुत मैकेनिकल इन नेचर है. तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू कंसिडर द 390. इट्स गॉट वे टू मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टू माई लाइकिंग. एनीवे, सो द नेक्स्ट स्टोरी इज, लेट्स सी हाउ दिस थिंग फील्स इन द सिटी. एक्सट्रैक्ट्स में तो देयर वाजंट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम पर से, बिकॉज ट्रैक था, शहर नहीं था. Let's see how does riding a Xpulse feel in the city. There we are. Let's crank her up. Oh, oops. Wow, I am pretty heavy. I am having to tiptoe. Okay, so I'm like 5'8" and a half, or slightly under 5'9", so 5'8" and a half, and I weigh around 100 kgs right now. Yes, I am okay. I am 100 because round is a perfect shape. There are no other reasons as to why I am 100. However, with my back injury now, subsidizing तो नहीं होता है word, but the condition of my back improving. Now what I'm trying to do is work on my fitness, started cycling, so that the target is next year INRC. I don't know, I don't have the talent to actually go and compete with those guys there, but yes, I have the will. I definitely want to see how it feels, riding those stages. All I've done is cross country, and these are really short, fast events. If you are short on time, you want to have a taste of off-road rallying, I think it's a great platform. So next year, that's the target. This year's, in fact, INSRC has also been declared, so that's great news for a lot of my friends जो बोर हो रहे थे, who were just wondering that no event calendar. So guys who love to race, for them, if there are no races, a major part of their life was missing. Of course, the family and all is there, and that is not something which is comparable. So don't misunderstand that way. I'm saying from a hobby, from something that relaxes an individual, from a activity point of view. अगर आप एक रैलिस्ट हैं, आप मोटोक्रॉसर हैं, सुपरक्रॉसर हैं, आपको रेस करना पसंद है, और अगर कोई इवेंट शेड्यूल नहीं है, इट्स बिग मिस. एग्जॉस्ट है इसमें लगा हुआ, सो आई जनरली राइड माई बाइक्स विदाउट एनी एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट से दो प्रॉब्लम होते हैं. वन, all such brothers think that we want to race. The fact is हम रास्ते में रेस नहीं करते. मैं तो फिलहाल रेस में भी रेस नहीं करता. I kind of go and have a fun tour there, because during racing everything is organized there and you kind of enjoy the off-road trails. There are ambulances. But yeah, net for the ones who want to race, they race. I don't race. अब देखो, जैसे मैं भाई अगर आगे निकला, भाई ने फिर वो करके निकलना है. Brother, I'm not racing with you. The exhaust is way too loud. I'm just not racing with you, brother. I don't like
to ride the free flow exhaust. Yes, it gives a lot of power. It kind of makes the bike lighter. But when you weigh 100 kilos, if I go and say that I want to use a free flow exhaust for weight reduction, everybody's gonna laugh. मतलब 2-3-4 किलो बचाऊंगा वहाँ है, जबकि शरीर से मैं 15-20 किलो तो अभी हंस के कम कर सकता हूँ. So till the time that weight reduction is not happening, I don't want to get into the exhaust scenario. It definitely has a lot of merits. Yes, you like to get some attention on the road. You kind of, lift that throttle, और वो जो आवाज़ आएगी दुनिया घूम के देखेगी. पर फिर वो एज निकल चुकी है. I'm kind of close to closing in on 40. 40 really, the heart is young. Don't mistake me saying I'm 40 with anything to do with the heart. But you at times kind of mature a little and you realize कि यार इससे फ़र्क क्या पड़ना है. Racing on the road will not make sense. And that's a KTM RC ready to race bike. And let's see, red light में I'm going to bet a cold drink against myself. जैसे रेड लाइट होगी भाई ओवरटेक करते हुए निकलेगा. He's going to speed and show off the prowess of his bike. See, again, red light, I'm standing tiptoes, So the positive side of riding an Xpulse, if you're a 5'8 kind of a fellow or a 5'9 fellow, is that you tend to become, okay, Sergeant Uncle आ गए हैं, so might not race immediately. हाँ, the point is अगर आप 5'8", 5'9" हैं और आप सिटी में Xpulse चला रहे हैं, you become a very good ballerina. And when I say that, हंसने का कुछ है नहीं, because my daughter loves ballerina and she watches them a lot, so that's how I realized it's extremely tough standing on those toes, मतलब the way they balance, amazing strength on those toes. So ये मैं ऐसे खड़ा होता हूँ ballerina की फील आती है. So हाँ, आप 6 फुट के बाद बिंदास चलाओगे Xpulse Rally Kit के साथ. Otherwise, what I recommend is that you can probably not use the rally seat. अगर आपको सस्पेंशन वगैरह लगाना है तो आप रैली सीट मत यूज़ करिए, बिकॉज दैट एड्स अनदर 2 inches of seat height. So if you are not using the rally seat and you are using the suspension, you will be fine. This again is a debatable topic by the way. अगर मैं रैली सीट यूज़ कर रहा हूँ तो राइडिंग एर्गोनॉमिक्स जो ट्राइंगल होता है ना, वो ट्राइंगल अच्छा होता है. नाउ नहीं, भाई शरीफ है. सो आई लॉस्ट अ थम्स अप टू माई सेल्फ. मुझे खुद को कोल्ड ड्रिंक देना पड़ेगा. गुड जॉब, यू वांट अ कोल्ड ड्रिंक. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू बेट अगेंस्ट योरसेल्फ, यू ऑलवेज कैन विन. नाउ वेयर आई वाज, हाँ मैं कह रहा था कि जो रैली सीट है उसको लगाने से ये जो राइडिंग ट्राइंगल है ऑफ द हैंड, यू सिट ऑन अ बाइक, दैट चेंजेस. एंड अगर आप अग्रेसिव चलाना चाहते हो ऑफ रोड में, सो दैट सीट इज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. हैंस इफ़ यू वांट टू गो अग्रेसिव एंड अगर आपको वो पॉस्चर चाहिए तो रैली सीट आपको यूज़ करनी पड़ेगी. एंड देन यू विल बिकम अ बैलरीना. सी, दिस इज़ हाउ यू विल बी. आई डोंट नो इफ माय टोज आर विजिबल. बट अगर आपको सिर्फ ख़राब रास्तों में आप टूरिंग करने जा रहे हो, ऑनेस्टली उसके लिए तो Xpulse की जो स्टैंडर्ड सस्पेंशन है ना, वही बहुत है. मतलब अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अ लॉट ऑफ यू माइट डिसएग्री विद मी, इज़ अगर मुझे सिर्फ राइडिंग पॉस्चर ठीक करना है और मैं बहुत ही ज़्यादा गंदे और ख़राब ऑफ रोड सेक्शंस नहीं चलाने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ह्यूज जंप्स. द अदर डे आई सॉ वन वीडियो, आई डोंट नो वेयर इट वाज, some forward but very limited to it, where I saw Satyaraj, I think he was, while this rally kit was being tested. So Satyaraj took some real big jumps. I was like, wow, that looks like an import. This suspension, if it is that same setup that has been forwarded and brought down into production, this setup can really take abuse from whatever I have seen. So unless and until you want to do that, अगर आपका इंटेंट है कि मैं अपर मस्तांग, लोअर मस्तांग घूम के आऊँगा, लेह लद्दाख घूम के आऊँगा, उस पर जाते हुए जो ब्रह्मपुर लोसर के खराब रास्ते हैं वो चलाऊँगा, जो आपका Xpulse का नॉर्मल सस्पेंशन है ना, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड. आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा. सो इफ़ यू आर समबडी हू शॉर्ट,
एंड आई एम सॉरी व्हेन आई से शॉर्ट इट्स रिलेटिव बिकॉज मैं भी शॉर्ट हूँ. जब मैं पंजाब जाता हूँ मैं बौना फील करता हूँ, यू नो एट 5'8.5", 5'9" सी. वो 5'8" नहीं निकलेगा मुझसे क्योंकि वो आधे इंच में छोड़ नहीं सकते हम. जो नाटे लोग हैं वो ये प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है. तो जो हम नाटे जब हैं तो हम अपनी छोटी छोटी एमएम्स भी नहीं छोड़ सकते. जब आप लंबे होते हो क्या 6.25 फुट, वो अलग चीज़ हो जाती है. 6 फुट 3 इंच, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 5 इंच, वो 6.25 फुट में निकल जाता है. लेकिन हम नहीं छोड़ पाएंगे. अगर आप भाई मेरी बात से सहमत हो तो एक छोटा सा नीचे कमेंट जरूर कर देना. सो एट अ 5'8.5", इफ़ आई हैव टू डू रैली, इफ़ आई हैव टू डू टेक्निकल सेक्शंस, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा टर्न होंगे या पत्थर है, पैर नीचे रखना पड़ सकता है, माई फर्स्ट चॉइस विल बी हैंडल बार राइजर्स एंड द रैली सीट. आई विल नॉट टच द सस्पेंशन. रैली सीट और हैंडल बार राइजर से मेरी राइडिंग एर्गोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी. एंड दोस्तों, राइडिंग एर्गोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर. बिकॉज ऐसा नहीं है कि द स्टैंडर्ड एक्सपल्स सस्पेंशन इज बैड, दैट इज ऑल्सो गुड. इट इज़ वेरी गुड. इट्स बेटर देन इम्पल्स from what I have heard and from whatever I have experienced, not first hand, I have seen people ride Sajoga. So the standard Expulse suspension is really good. Yes, if you want to further up the game, आपको engine में और power चाहिए, you need you are going to take big jumps and you are really going to ride aggressive, which trust me, not a lot of, हमें सबको लगता है कि हम ना धुएंधार चलाते हैं, हम बहुत ही फाड़ू राइडर हैं, बट जब आप रैली ट्रैक पे पहुँचोगे ना, आपको वहाँ हकीकत समझ आएगी कि इंडिया में ऐसे ऐसे यंग टैलेंटेड लड़के हैं. आपको लगेगा वो तो पागल है, वो ना मरने के लिए चला रहा है. द पेस दैट दे कैरी, द वे दे गो, यू विल फील दैट दीज गाइज हैव अ डेथ विश. बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट. दे हैव दैट मच ऑफ टैलेंट, दे हैव दैट मच ऑफ कंट्रोल ऑन द व्हीकल दैट दे कैन स्टॉप इट फ्रॉम एनी स्पीड. एंड द सेम इज एप्लीकेबल. जैसे कोई अगर एकदम ही नॉर्मल चलाता है, वो हम जैसे स्लो राइडर्स को भी देखेगा तो बोलेगा यार ये तो पागल है, इसकी डेथ विश है, खूब ना बंगाली में होते खूब बाजे चला है. But that's not a fact. You always ride, at least most of the riders who can ride within 70-80% of their capabilities, you mostly ride safe. At sea closer to 40, I don't want to go to an event to risk an injury because I'm not a professional rider per se. I am not a factory rider. I don't have sponsorships. मैं पैसे जमा करता हूँ, मैं रेस करता हूँ, ठीक है. मुझे किसी को कोई जवाबदारी नहीं है. If I perform well, I get happy. If I don't perform well, I'm okay with that as well. जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं, obviously then that's their primary job. So if that's their job, then they will be putting in that kind of effort. मतलब अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो ट्रैक पे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. तो हम वो नहीं हैं. हम वो हैं जो इंजॉय करने के लिए रैली करते हैं. And a lot of us, and a lot of you who are looking and who are viewing this video, see, if you are in your 20s, I am sure you can put in. Actually, the age is not a factor. Any point in time you want to become a professional and really make an impact, you have to put in time. आप जाओ Bangalore में, you can go to Big Rock Motor Park, CS Training Academy. You can go to Tribal Sanjay, or you can go to a good friend of mine, Sohail Ahmed. These guys will train you. They will make you better riders, right? They are amazing. But आपको उसमें फिटनेस, आपको टाइम, एनर्जी सब देनी पड़ेगी. You have to dedicate some time to that sport. ऐसा नहीं है कि बस आज मन किया उठा के चले गए, एक हफ्ता वहाँ लगा के आ गए और हम बन गए जी फाड़ू राइडर. ऐसा नहीं होगा. आपको टाइम देना पड़ेगा. एंड इट इज़ नॉट ईजी. ओके, इट्स वेरी टफ. इट लुक्स ईजी फ्रॉम द आउटसाइड, बट जो मोटरसाइकिल चलाना पड़ता है, जितना इंगेज करके खुद को चलाना पड़ता है, इट्स एन एक्सट्रीमली टफ थिंग टू डू. So coming back to the Expulse, I'm sorry I diverted. If I am going to ride and I know my limits, I know my capacity, I know कि मैं 110 पे कच्चे पे नहीं चलाने वाला हूँ. मैं मे भी 60-70 पे चलाऊँगा, depending on how bad a the road is. I am going to ride in a comfort zone. मेरे लिए standard Expulse का suspension is good enough. So अगर तो मैं जा रहा हूँ और मेरे पास रैली किट नहीं है और रैली खरीदने के पैसे भी नहीं है, मैं ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा, ठीक है. बिकॉज जैसे ही मैं रैली किट लगाऊंगा, एक चीज़ और होती है, आप ग्रुप बी से, विच इज़ अ स्टॉक मोटरसाइकिल ग्रुप, आप ग्रुप सी में आ जाते हो, विच इज़ अ मॉडिफाइड कैटेगरी. बिकॉज दीज रैली किट्स आर होमोलोगेटेड, सो यू डोंट गो टू ग्रुप जी, बट यू गेट इनटू अ ग्रुप सी. Handlebar and seats are free in all groups. So if I only use the handlebar riser and I only use my seat and I go for an event, whichever event has a stock bike category, वहाँ पर आप उसको स्टॉक बाइक कैटेगरी में चला सकते हैं. साउथ में मोस्टली इवेंट्स में स्टॉक बाइक नहीं होता. दे हैव बी और ए, दे डोंट इवन हैव सी.
बी का मतलब है आप इंपोर्टेड सामान भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंडियन बाइक पे इंपोर्टेड सस्पेंशन भी लगा सकते हैं. नाउ आई क्रॉस दिस बम्प, यू नो, आई वुड दिस हैबिट ऑफ स्टैंडिंग अप एंड इनफैक्ट बिकॉज एनीवेज मेरे बैक की बैंड बजी हुई है, वैसे इट्स अ गुड आइडिया, बट काफ़ी कंफर्टेबली निकल रहा है. वन मोर थिंग है, जैसे बाइक चल रही है मैं से बात कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट रियलाइजिंग दैट इट्स अ रैली किटेड एक्सपल्स, इसकी व्हील बेस थोड़ी और बड़ी हो गई है, यू नो, एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, एकदम कंफर्टेबल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है. शुरू में ये एक प्रॉब्लम ये फेल हुई थी कि 21 चक्का है, आई एम यूज्ड टू राइडिंग अ 19 विद अ, यू नो, स्मॉलर प्रोफाइल टायर, तो इनिशियली हैवी लग रहा था, बट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गॉन अवे. नाउ आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद दिस बाइक. Yes, when will I suddenly realize that I'm on a rally-kitted bike? Probably as soon as I hit that red light. Oh, but yes, this time I have a savior. So at 5'8.5", I also need at times a footpath to place my leg. Oops, ये तो चक्का नीचे उतर गया. पहले और एक गाड़ी में तेल भी भराना है. ओके, सो भाई की गाड़ी ली थी मैंने, एक बार कम हो गया है. जब भी मैंने उससे बाइक ली थी इसकी एवरेज स्पीड बस 38 km/h. 100 किलोमीटर चलाई होगी मैंने बाइक, इसकी एवरेज स्पीड भी मैंने 38 से 34 कर दी है. सो सिटी में ऐसे प्यार मोहब्बत से चलाना चाहिए, और भाई एनीवेज फास्ट राइडर है. नाउ विद दिस थिंग दैट केम डाउन आई विल हैव टू, या सो ये जैसे मैं ऑकवर्ड से पोजीशन में आ गया था, तो हाइट वहाँ पर चैलेंज हो जाती है. बट अगेन वंस आई स्टार्टेड एंड दिस बाइक टर्न्ड इन वेल, यू नो, देयर इज नो चैलेंज पर से. सो सिटी में अगर आप चला रहे हो, एंड ये मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, इफ यू आर राइडिंग इन द सिटी द स्टैंडर्ड एक्सपल्स इज वेरी गुड. ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप हाईवे टूर्स पे जा रहे हो, आप यू नो घूमने जा रहे हो, और एक वाटरफॉल में जाना है जहाँ पे आपने 95% ऑफ योर टूर रोड इज गोइंग टू बी टारमैक, देन आई वुड एक्चुअली रिकमेंड टेक अ हिमालयन. अगर आप ऐसी किसी जगह जा रहे हो जहाँ पर यू नो कच्चे रास्ते भी काफ़ी आएंगे, मतलब और आपको थोड़ा बहुत कच्चे में एंजॉय करते हो आप चलाते हुए, वहाँ पे भी आप हिमालयन चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से चलेगी. आप स्टैंडर्ड एक्सपल्स लेके जा सकते हो. स्टैंडर्ड एक्सपल्स में आपने क्या करना है, सिर्फ एक रैली सीट खरीद के लगानी है और हैंडल बार राइजर्स के साथ हैंडल बार में लगा लो. आपकी राइडिंग जो ज्योमेट्री है ना वो ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स. आपको एक्सपेंसिव सस्पेंशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज द स्टैंडर्ड सस्पेंशन ऑफ द एक्सपल्स इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. तो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ रैली किट लगा दी, रैली किट से सीट लगा दी, हैंडल बार लगा दिया, एंड मैं ना फोकस कर रहा था कि मैं रोकूंगा तो कहाँ, देखो यहाँ पे भी ये मिल गया है तो मेरे लिए अच्छा है. ये मेरे जूता फट गया. उस दिन मैं एक पुरानी वाली वो चला रहा था, एरियल NH, उसका भी एक गाइड एक्सपीरियंस वीडियो बाद में बनाया है, आई विल शेयर दैट सून एज वेल. शायद वो पहले शेयर करूँगा. तो प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो उसमें गियर इस साइड होते हैं, तो उस चक्कर में मेरा जूता अड़ के फट गया. बट एनीवेज, so you want to tune your suspension, because खराब रास्तों में ट्यून सस्पेंशन बहुत फर्क होता है. इफ यू कैन हुक अप, यू नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन सस्पेंशन ट्यून अप्स, पर अगर आप थोड़ा भी सस्पेंशन ट्यूनिंग के ऊपर यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, you will understand what is the value of a suspension tune up. बाहर में people lose and win races because of a correct or incorrect suspension tune up. It's that critical, right? So here I have reached my office, and again I will need to use this. Definite recommendations from the rally kit: a handlebar riser and a rally seat. The whole geometry of the bike changes. If you want to get into professional rallying, go for the suspension. Jugaad for all you people who are in South or North and even in Bengal. अगर आपको रैली किट की सीट नहीं मिल रही है, you can go to a good seat guy, look at the seat, he will be able to fabricate something for you. Handlebars, if you are not getting the risers, you can always connect with Uday. He is extremely helpful. He will help you source a good handlebar. He can also help you with the rally seat. He can tell you how to and where to go about it, because this rally seat is not the one that came with the factory. That's a separate rally seat. इसने बनाई हुई है पहले से.
ठीक है गाइस, चलो हम रीच्ड ऑफिस, कनेक्ट विद यूएस इंडिया।